Good evening, everyone. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Perfect. Let's start with today's class. Classification of plant tissues will be covering this slide very quickly. ठीक है? तो जल्दी से कर लेते हैं. How the plant tissue has been classified. ठीक है? सबसे पहले है meristematic tissue. ठीक है? This is also known as growing tissue. Okay? जो growth tissue है plant का, that is also known as meristematic tissue. Will be covering up meristematic tissue के ही कितने types हैं in the further slide. Okay? Give me a minute. Mute yourself, जो unmuted है. Okay, so good. Next is एक तो plant grow करता है. ठीक है? The first thing is the plant grows. The second thing is it needs to maintain. जब आप ग्रोथ करते हो तो उसके बाद प्लांट को मेंटेनेंस भी तो चाहिए. राइट? तो जो मेंटेनेंस टिश्यूज होते हैं उनका नाम क्या है? दे आर परमानेंट टिश्यूज. क्योंकि परमानेंटली मेंटेनेंस चाहिए प्लांट को. प्लांट एक बार ग्रो हो गया, इट विल स्टार्ट विद फोटोसिंथेसिस, टॉक्सिन वेस्ट को बाहर निकालना, वाटर ट्रांसपोर्ट करना, फूड ट्रांसपोर्ट करना, to produce new fruits and flowers. So these are all the maintenance activities which are going on in the plant, and that is where the permanent tissue. अगर कोई चीज permanent नहीं होगी तो maintenance will stop. ठीक है? तो परमानेंट टिश्यू इसलिए होता है क्योंकि वो ग्रोथ टिश्यू का पार्ट नहीं है. दे आर परमानेंट टिश्यू. दे विल नॉट help in growth of a plant, but they will help in maintaining that part which has already grown. परमानेंट टिश्यू सिंपल और कॉम्प्लेक्स होता है. ठीक है? विल बी कवरिंग दिस अप कि कौन से दो टाइप के परमानेंट टिश्यूज होते हैं. एक होता है सिंपल. सिंपल मीन्स ओनली वन काइंड ऑफ सेल इज इन्वॉल्व. कॉम्प्लेक्स मीन्स मोर देन वन टाइप ऑफ सेल. मतलब कोई कोई ऐसा सेल होगा, कोई ऐसा सेल होगा, कोई ऐसा ट्यूब जैसा सेल होगा. अगर कोई अलग अलग टाइप के सेल्स हैं और वो कलेक्टिवली एज अ टिश्यू काम कर रहे हैं, देन इट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स टिश्यू. सिंपल का मतलब है सब एक ही जैसे हैं एंड दे आर वर्किंग एज अ सिंगल टिश्यू एंड देयरफॉर दे आर नेम्ड एज सिंपल परमानेंट टिश्यू. अब इस स्लाइड को हम कवर अप कर चुके हैं. जस्ट अ ब्रीफ ऑफ इट. नाउ कम्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. Anyone who would like to take it up? Meristematic tissue क्या होता है? How many types of meristematic tissue are there? Raise your hand. किसको पता है meristematic tissue कितने टाइप के होते हैं? Why do we study it? What is the importance of meristematic tissue? Yes, Siddhant. Yes, ma'am. Ma'am, meristematic tissues are those types of tissues in which growth happens in the plant cells. There are three types of meristematic tissues: apical, lateral, and intercalary. Okay. Uh, Anyone else who would like to explain in detail what is apical meristem? Ma'am, I can explain what are the importance of meristematic tissue. Yes, you can tell me the importance. Laksh. Ma'am, meristematic tissue are also known as growing tissue. Ma'am, they help a plant to grow. As ma'am, in a plant, growth is suspended to the tips and ends. That's why we need a meristematic tissue so that plant can grow and produce its own foods. Yes, ma'am. Okay. Good. Ma'am, am I audible? Yeah, you are audible. Okay. Okay, Shaurya. Yes, ma'am. Ma'am, meristematic tissue, ma'am, is a simple living tissue, ma'am, which is thin-walled and it is compactly arranged. Yes. And it is capable of division. Perfect. Okay, let's take it up. Apical meristem, intercalary meristem, and lateral meristem. You can put down your hand. ठीक है? इसको जल्दी से cover up करते हैं. Apical का मतलब क्या है? Apical is on the tip. Tip means या तो shoot की tip या root की tip. The plant grows in length upward and downward. उसके लिए कौन responsible है? Apical meristem.
साइडवेज की बात करें, साइडवेज के लिए एपिकल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, बट एक चीज है, जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ प्लांट, ठीक है, प्लांट की न्यू लीफ निकल रही है, प्लस प्लांट की न्यू लीफ के साथ एक फ्लावर भी निकल रहा है, ठीक है, दैट फ्लावर एंड लीफ, वो प्लांट ऊपर जा चुका है, एपिकल मेरिस्टेम ऊपर जा चुका है, बट इट लेफ्ट अ पार्ट ऑफ इट, उसने अपना कुछ ग्रोइंग पार्ट यहाँ लीव कर दिया, छोड़ दिया, और वो आगे बढ़ गया, ठीक है, उस ग्रोइंग पार्ट से लीफ निकली प्लस एक फ्लावर निकला, तो एपिकल मेरिस्टेम इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग लीव्स एंड फ्लावर्स। लीव्स और फ्लावर्स जो नए नए निकलते हैं, दे आर फ्रॉम एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, इट लीव्स अ पार्ट ऑफ इट एंड गोज अप, गोज डाउन, और जो उसने अपना पार्ट छोड़ दिया, छोटा सा हिस्सा छोड़ दिया, उससे न्यू लीव्स और न्यू फ्लावर्स निकल गए, बट give me a minute, people are still joining, yes, ठीक है, लेकिन जब आप बात करो इंटर कैलरी मेरिस्टेम, दैट इज रिस्पॉन्सिबल, यस आर्जव, यू हैव अ क्वेश्चन, आर्जव, यू रेज योर हैंड। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, I have a doubt. Yes. Ma'am, like if in apical meristem, ma'am, it leaves a ma'am small portion, and ma'am the leaf grows. So, ma'am, that is also apical meristem. That is not, that is secondary apical meristem, that is not a part of the syllabus, but मैं सिर्फ explain कर रही हूँ कि जो वो secondary part अपना छोड़ देता है, that is responsible for leaves and flower development, but that is not apical. अगर आप पेपर में लिखोगे तो apical is always responsible for primary growth, which is lengthening of the plant ऊपर और नीचे से, which is only present at the tip of shoot and root. वो जो secondary हिस्सा छोड़ देता है अपना, मतलब लीव्स और फ्लावर्स जो बनते हैं वो सेकेंडरी एपिकल मेरिस्टेम से बनते हैं, दिस इज समथिंग व्हिच यू विल टेक इट अप इन द हायर क्लास, लेकिन मैं वैसे बता रही हूँ लीव्स और वो किससे बनते हैं, वो सेकेंडरी एपिकल मेरिस्टेम से बनते हैं, ठीक है। Okay, ma'am. अब Thank you, आता ma'am. है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द एरिया इंटरनोड, मतलब यहाँ पे एक नया नोड निकल रहा है, यहाँ पे एक नया ब्रेक, ये जो ब्रेक पॉइंट है इसके बीच में जो ये हिस्सा है, दिस इज नोन एज इंटरनोड। इंटरनोड, द डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स इज नोन एज इंटरनोड, एंड फॉर दिस इंटरनोड टू ग्रो, और इंटरनोड सबसे ज्यादा ग्रोथ में किसमें हेल्प होता है, फॉर एग्जाम्पल शुगर केन प्लांट, शुगर केन प्लांट में यू मस्ट हैव सीन दिस इज हाउ द शुगर केन प्लांट ग्रो, ठीक है, एक बार इस तरह बनता गया एंड द प्लांट विल कीप ऑन ग्रोइंग, यहाँ पे एपिकल पाया जाएगा इस वाले हिस्से में, रूट वाले हिस्से में यहाँ पाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये एज इट इज रह जाता है, दे ऑल्सो ग्रो इन साइज। थोड़े टाइम बाद देखोगे, एक महीने बाद शुगर केन नोड वाइज भी बिगर हो चुका होगा, ये वाला नोड इतना बड़ा हो चुका होगा, ये वाला नोड इतना बड़ा हो चुका होगा, these nodes also grow in size, and why is that so, क्योंकि intercalary meristem is present internodes में, that is why the growth of the node takes place, ठीक है, yes Vansh। Ma'am, does the apical meristem is in all the parts of sugarcane? Apical meristem is always present in the shoot tip and root tip. When you are talking about internodes, जब आप internodes को रेफर करोगे या nodes को रेफर करोगे, simple, that is always intercalary meristem, ठीक है, you're always talking about intercalary meristem, ठीक है जी। I hope this is clear, इसमें कोई doubt? Then comes No, ma'am. lateral meristem. Lateral means sideways, जब कोई चीज साइडवेज ग्रो हो रही है, ठीक है, आपने ये प्लांट था, इट इज स्टार्टेड टू ग्रो इन विड्थ, अब वो विड्थ में ग्रो हो रहा है, रेडियली, मतलब सर्कुलर मूवमेंट, उसकी साइडवेज मूवमेंट हो रही है, सर्कुलर। हमने देखा होगा अगर ट्री कोई कटता है, यू ऑलवेज सी दोज रिंग्स, राइट, ट्री में रिंग्स देखी जाती है, यस और नो, दीज रिंग्स आर नथिंग Yes, बट ma'am. Bark of it.
Yes, bark of a tree. Lateral meristem is responsible for that circular ring-wise growth of a plant. Yes, Arjun? मैम तो जो मैम लीव्स मेन स्टेम से ग्रो हो रही है मैम वो भी इंटरकैलरी मेरिस्टेम में से होगी। Yes. Once देखो जो यहाँ पे ग्रो हुआ वो सेकेंडरी पार्ट हो जाता है, ठीक है। जो नोड्स ग्रो हो रहे हैं, जो स्टॉक ग्रो हो रही है, मतलब जो इससे स्टॉक ग्रो हो रही है जिसके ऊपर एक लीफ आएगी, वो तो इंटर कैलोरी से आ रही है। लेकिन जो नई लीफ बन रही है उसका जो बड है, मान के चलो ऐसा है प्लांट, इसका बड है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अ टिप, ठीक है। तो ये टिप है, ये आप हायर क्लासेस में करोगे। दिस इज ऑल्सो नोन एज अ टिप ऑफ अ प्लांट, एक पर्टिकुलर टिप है। तो वो सेकेंडरी एपिकल मेरिस्टेम है जिससे कि नया फ्लावर या नया लीफ निकल के बाहर आएगा। बट दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, तो कंफ्यूज मत होना। एपिकल मेरिस्टेम जब भी पेपर में आएगा यू हैव टू राइट शूट टिप एंड रूट टिप, और जो इंटरनोड्स बनते हैं दैट आर बिकॉज ऑफ द इंटर कैलोरी मेरिस्टेम। लेकिन हम जब लीव्स और फ्लावर्स को कंसिडर करते हैं तो एपिकल मेरिस्टेम जब ग्रोथ ईयर्स में बढ़ रहा होता है, दैट लीव्स अ सर्टेन पार्ट ऑफ इट, जिसकी वजह से नए लीव्स और नए स्टेम, नए लीव्स और नए फ्लावर्स बन जाते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज ओके क्लियर, मैम। ठीक है। और यस उसके मैम। बाद पेरेन्काइमा भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। विल डिस्कस कि पेरेन्काइमा क्या होता है, ठीक है। बट दैट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, बट यस डिविजन करके वो फ्रूट्स वगैरह बना लेता है। यस वंश? मैम इंटर कैलोरी मेरिस्टम समझ नहीं आया। इंटर कैलोरी मेरिस्टेम का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल देखो, जब हम ये प्लांट देख रहे हैं ना, तो ये जो नई सी आपको ग्रोथ दिख रही है, ये नई सी स्टेम की, दिस इज बिकॉज ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। लेकिन आप जब प्लांट की कवर द क्वेश्चन लेटर, जब आप प्लांट के इस वाले हिस्से की बात करो, आप थोड़े दिन बाद देखोगे दिस एरिया विल ग्रो बिगर इनटू दिस, अगेन दिस एरिया विल ग्रो अ लिटिल बिगर। प्लांट बड़ा होता है ना, ठीक है। प्लांट सिर्फ ऊपर से नहीं बढ़ रहा, इट इज ऑल्सो ग्रोइंग इन बिटवीन। इन बिटवीन के जो हिस्से यहाँ बढ़ रहे हैं, ठीक है, जो स्टेम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दे आर बिकॉज ऑफ द इंटर कैलोरी मेरिस्टेम, ठीक है। जो स्टेम इंटरनली ग्रो हो रही है, जो बीच वाली स्टेम है, मिडिल पार्ट ऑफ द स्टेम, एंड दैट इज ग्रोइंग बिकॉज ऑफ इंटर कैलोरी मेरिस्टेम। जो शूट्स और रूट्स की टिप होती है, दे आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ फॉर ग्रोइंग, दे आर ग्रोइंग बिकॉज ऑफ द एपिकल मेरिस्टेम। और लेटरल मेरिस्टेम ग्रीन प्लांट्स में नहीं होता है, लेटरल इज ऑलवेज सीन इन द वुडी प्लांट। जो भी वुडी प्लांट्स होते हैं जिनकी बार्क होती है, ग्रीन वाले एरिया में आपको लेटरल मेरिस्टेम नहीं दिखेगा। जब वो ब्राउन कलर की पूरी बार्क बन जाती है, ओनली देयर लेटरल मेरिस्टेम इज सीन, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स में मेरिस्टेम नहीं, ये लेटरल मेरिस्टेम नहीं देखा जाता। यस लक्ष्य? लक्ष्य, यू रेज योर हैंड बच्चे। एनीवेज विल मूव बियॉन्ड इट। Yes, हाँ ma'am. लक्ष्य बोलो। Ma'am, internodes is the difference between two nodes. यस यस यस, सो दिस एरिया आई शो यू। मान के चलो इसको एक नोड कहोगे, नोड 1, ये नोड 2 है, और जो इनके बीच का एरिया है विच इज ग्रोइंग इज नोन एज इंटरनोड, और इंटरनोड की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है इंटर कैलोरी मेरिस्टेम, ठीक है। क्योंकि ये हिस्से भी तो ग्रो कर रहे हैं, बट दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ द टिप एनीमोर। ये टिप पे तो है नहीं, टिप पे तो ऊपर होगा या रूट के नीचे होगा। तो ये बीच वाले हिस्से कैसे ग्रो करेंगे? प्लांट इतना छोटा थोड़ा रहेगा, प्लांट तो बड़ा होगा ना। एंड दिस एरिया इज ग्रोइंग बिकॉज ऑफ द इंटर कैलोरी मेरिस्टेम, ठीक है। Understood? So lateral meristem is not seen in the greener section of the plant. It is always seen in the wooden parts of the plant, जो wood में convert हो चुके हैं, या आप मान के चलो जो कि bark बन चुका है, dead part of the plant, उसके बीच में एक living tissue पाया जाता है, which is known as lateral meristem. We'll cover this up in the next slide कि वो कहाँ पाया जाता है. Even when there is a dead part in the plant, bark is almost dead, बट उसके बीच में भी एक लिविंग टिश्यू होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द गर्थ ऑफ द प्लांट, या आप उसको गर्थ बोल लो,
या उसको विड्थ बोल लो, ठीक है। जब वो उसके लिए उसको वाइडन कर देगा, दैट इज व्हाट इज लेटरल मेरिस्टेम ऑल अबाउट, ठीक है। विल डू अ लिटिल बिट ऑफ क्वेश्चन ऑन एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। इससे पहले कि ये क्वेश्चंस करें, लेट्स कवर द सब कैरेक्टरिस्टिक्स कर लेते हैं, ठीक है। इट हैज पावर ऑफ कॉन्टिन्यूस डिवीजन। अगर कोई चीज की कॉन्टिन्यूस डिवीजन की पावर है तो इट मीन्स उसके पास डेंस साइटोप्लाज्म होगा, बिकॉज साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे आयंस होंगे, विटामिन होंगे, बहुत चीजें होंगी विच विल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो डेंस साइटोप्लाज्म प्लस अ गुड डिफाइंड न्यूक्लियस, ठीक है। दोनों चीजें बहुत जरूरी है फॉर इट टू डिवाइड कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। मेरिस्टेम, इसका कॉमन नेम मेरिस्टेम होता है। सो इफ अ क्वेश्चन कम्स अबाउट मेरिस्टेम या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इट इज वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। सेल साइजेस यू डोंट हैव टू रिमेम्बर, लेकिन बस इतना याद कर लो कि अलग अलग टाइप के, पॉलीगोनल भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर, ओवल, राउंडेड, किसी भी तरह के हो सकते हैं। द बेस्ट पार्ट इज द इंटरसेल्युलर स्पेस इज एब्सेंट, ठीक है। अगर आपने देखा होगा इसको, अगर आपने देखा होगा अगर आपने ये देखा हो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो यहाँ पे आपको कहीं भी इंटरसेल्युलर स्पेस दिखेगी ही नहीं। इंटरसेल्युलर स्पेस इज एब्सेंट इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, बिकॉज वो इतने रैपिडली ग्रोइंग होते हैं। यहाँ से ग्रोथ हो रही है, यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, इतनी रैपिड ग्रोथ होती है दैट देर इज नो स्पेस या इंटरसेल्युलर स्पेस फाउंड इन द सेल, ठीक है। तो इसमें इंटरसेल्युलर स्पेस गायब होती है एंड दे आर डेंसली पैक्ड, ठीक है जी। तो इंटरसेल्युलर स्पेस गायब होती है। नेक्स्ट इज थिन वॉल्ड। व्हाई इज इट थिन वॉल्ड? एनी आइडिया कि थिन वॉल क्यों होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की? Ma'am, so that it can grow easily. यस, टू सो दैट इट कैन डिवाइड इजीली। अगर सेल्यूलोज की लेयर बहुत मोटी होगी तो इट विल, अगर जितनी मोटी सेल वॉल होती है, अगर मोटी कर दो ना इसको, एक तो डिवीजन में टाइम लेगा, प्लस जितने भी इसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो न्यूट्रिएंट्स अंदर आने में भी विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस या आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी कह सकते हो, उसमें भी टाइम लगेगा। क्योंकि सेल्यूलोज की वॉल जितनी मोटी होगी उतना ही सेल टाइम लेगा अपने अंदर इंग्रेडिएंट्स को लेने में या उसको बाहर एक्सपेल करने में। दैट इज व्हाई इट इज थिन वॉल्ड, कि आराम से डिवीजन भी हो जाए, प्लस देयर इज अ कांस्टेंट टू एंड फ्रो ऑफ न्यूट्रिएंट्स सो दैट इट कैन डिवाइड रैपिडली, ठीक है। इसलिए थिन वॉल्ड होते हैं, हमेशा याद रखना, मेरिस्टेम और ऑलवेज थिन वॉल्ड, ठीक है। न्यूक्लियस विल बी सिंगल, लार्ज एंड प्रोमिनेंट एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इट, क्योंकि डेंस साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस होगा, तो उसकी वजह से ही डिवीजन कॉन्टिन्यूस रहती है, ठीक है। बट दे डू नॉट स्टोर फूड। अगर वो फूड स्टोर नहीं करते हैं, दैट मीन्स उनके अंदर वैक्यूल या तो Ma'am, हो, vacuoles. सॉरी, Ma'am, they might not be having vacuoles if they don't store. एग्जैक्टली, ठीक है। अगर उनको फूड स्टोर ही नहीं करना, फूड स्टोर इसलिए नहीं करना बिकॉज दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द प्लांट। तो उनको स्टोर नहीं करना कोई भी तरह का फूड, उनको सिर्फ ग्रोथ करनी है और आगे बढ़ते चले जाना है। दैट इज वाई यू माइट सी वेरी लेस वैक्यूल्स, या उनके अंदर हो सकता है वैक्यूल्स हो ही ना, ठीक है। यस वंश, Ma'am, गिव मी अ मिनट अतीश, वंश बताओ। Ma'am, meristematic tissues help in division or growth. दे हेल्प इन ग्रोथ विद द हेल्प ऑफ डिविजन, Okay, ma'am. ठीक है। आर्जव, मैम तो पर अगर वो ग्रोथ होनी है उनकी तो मैम उनको एनर्जी चाहिए होगी, और मैम एनर्जी तो मैम माइटो। एनर्जी बेटा, कैन यू रिपीट? आवाज कट रही है। मैम मैं कह रहा हूँ कि जैसे जो ग्रोथ होती है उसके लिए तो उन्हें एनर्जी चाहिए होगी ना, और हम्म, एनर्जी के लिए उन्हें फूड चाहिए होगा। तो अगर उनके बिल्कुल। पास फूड ही नहीं होगा तो मैम वो हाँ, एनर्जी के। नहीं, फूड स्टोर करना और फूड होने में डिफरेंस है। ऐसा नहीं है कि वो उनके पास फूड होता ही नहीं है, देयर इज अ कांस्टेंट जो उनके आसपास की जो सेल्स हैं, ठीक है। जैसे ही मेरिस्टेम बना उसके आसपास के सेल्स हैं, मतलब आसपास के सेल्स बने, ठीक है, एंड दे कन्वर्टेड देमसेल्व्स इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स। फॉर एग्जांपल मान लो, अभी हमने पढ़ा नहीं है, पेरेंकाइमा सेल्स बन गए,
ये वाले सेल्स रिस्पॉन्सिबल है फूड को स्टोर करने, इन्होंने वैक्यूल के अंदर स्टोर कर लिया, तो दे विल कॉन्स्टेंटली सप्लाई द मेरिस्टेम विद दिस काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट, ताकि वो आगे ग्रो कर सके। तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे आसपास के सेल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ही रहते हैं, बिकॉज दे आर रैपिडली डिवाइडिंग। जो उनके आसपास के सेल्स होते हैं, दे कॉन्टिन्यूअसली डिफरेंशिएट देमसेल्व्स इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, जो कि अपना अपना काम करते हैं। सम आर स्टोरिंग फूड, सम आर प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स। लेकिन मेरिस्टेम क्या करता है, मेरिस्टेम कहता है अगर मैं वैक्यूल को इतनी जगह दे दूंगा, मान के चलो ये सेल है और इसके अंदर वैक्यूल ने बहुत जगह ले ली, वैक्यूल ने इतनी जगह ले ली, तो साइटोप्लाज्म विल श्रिंक एज वेल एज द न्यूक्लियस विल आल्सो श्रिंक, तो डिवीजन में प्रॉब्लम आई। ठीक है, क्योंकि डिवीजन के टाइम पे उनको वैक्यूल की जरूरत नहीं, सबसे कम जरूरत होती है वैक्यूल की, वैक्यूल वैसे भी डिसइंटीग्रेट हो जाता है एट द टाइम ऑफ डिवीजन, सो दे वांट मिनिमम थिंग्स टू बी देयर व्हिच आर यूजलेस एट द टाइम ऑफ डिवीजन, मैम जिसकी वजह से क्या हो वैक्यूल जाता है? नहीं होता। हाँ जी बोलो। मैम वैक्यूल जो होता है वो सेल डिवीजन के टाइम मैम क्या हो जाता है, आपने एक वर्ड बोला था। डिसइंटीग्रेट, डिसइंटीग्रेट। बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं एक सेल के अंदर, मान के चलो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी एपैरेटस हो गया, बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं जो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, मतलब वो टूट जाते हैं, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया इस शेप का नहीं रहता, वो टूट के छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट डिवाइड हो जाएगा। वंस द सेल डिवाइड इटसेल्फ, एक से दो सेल बन गए, तो उसके अंदर जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया डिसइंटीग्रेट हो गए थे, दे विल इंटीग्रेट वंस अगेन एंड टेक अप दिस शेप। लेकिन जब डिवीजन हो रहा होता है ना, तो कोई भी ऑर्गेनल उस शेप का नहीं रहता जिसमें वो नॉर्मली रहता है। वो सारे के सारे, मान के चलो इट इज अ ब्लॉक गेम, बहुत सारे ब्लॉक्स मिलके माइटोकॉन्ड्रिया बना हुआ है, जब सेल डिवाइड करता है तो वो सारे ब्लॉक्स इंडिविजुअल यूनिट्स बन जाते हैं, और फिर वो जैसे ही एक बारी डिवीजन करके नया सेल बन जाता है, तो वो ब्लॉक्स फिर से जुड़ के माइटोकॉन्ड्रिया बना लेते हैं। ठीक है, तो वैक्यूल भी डिसइंटीग्रेट होता है। ओके मैम। हाँ जी भव्य बोलो। Ma'am, so lysosome is responsible for disintegrating the other organelles. नहीं, लाइसोसोम डिवीजन के टाइम पे कोई काम नहीं करता, लाइसोसोम रिस्पॉन्सिबल फॉर कोई भी ऑर्गेनल खराब हो गया या इट हैज माल फंक्शन, तब लाइसोसोम अपना काम करता है, उनको डिसइंटीग्रेट करता है। पर हम डिवीजन की जब बात करें, और वो डिसइंटीग्रेट भी नहीं करता, वो उसको डिस्ट्रॉय ही कर देता है, और उसके सारे जितने भी यूनिट्स होते हैं उनको डिसॉल्व कर देता है, उनको यूज कर लेता है प्लांट के अंदर। लेकिन जब डिवीजन हो रहा होता है, तो वो डिसइंटीग्रेट होकर दोबारा इंटीग्रेट हो जाते हैं। उसका वो ये नहीं कि एक बार ही हट गए तो हट गए, सेल डिवीजन के टाइम पे वो सब टूटे, मतलब एक बड़ा सा ब्लॉक ले लो, एक बड़ा ब्लॉक था, वो बहुत छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड हो गया सेल डिवीजन के टाइम पे, फिर जैसे ही सेल डिवाइड हो गया, वो वापस से सब जुड़ के वापस से उसी शेप में आ गए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी उनका ऑर्गेनल ले लो, गोल्गी एपैरेटस ले लो, ये सब इसी तरह डिसइंटीग्रेट होकर दोबारा के दोबारा जुड़ जाते हैं। ठीक है, यस वंश। मैम टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। मैम तो फिर ग्रुप नहीं ऑफ नहीं, सेल्स हाँ में हाँ, से ग्रुप ऑफ सेल्स, यस अलग न्यूक्लियस किससे? सॉरी, Ma'am, tissue is a group of cells. So, यस। ma'am, how can a group of cells have a single nucleus? नहीं, किसने बोला सिंगल न्यूक्लियस होता है? Ma'am, it's written there in meristematic cells, nucleus single large. अच्छा, ये न्यूक्लियस इज सिंगल लार्ज, मतलब जो सिंगल न्यूक्लियस है दैट इज लार्ज मेरिस्टेमेटिक। अब जब हम टिश्यू की बात करते हैं ना, और जब हम न्यूक्लियस को रेफर करते हैं, वी आर रेफरिंग टू अ सिंगल सेल। तो वो कह रहा है जो सिंगल सेल का सिंगल न्यूक्लियस है दैट इज लार्ज एनफ विच इज सीन फ्रॉम अ नेकेड आई एज वेल। अगर आप मतलब माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो आपको दूर से ही वो प्रोमिनेंट सी फिगर दिख जाएगी, तो दिस इज रेफरिंग टू अ सिंगल सेल जिसका एक सिंगल न्यूक्लियस होता है। ऐसा नहीं है कि पूरा टिश्यू का एक सिंगल न्यूक्लियस है, नहीं नहीं नहीं। Okay, ma'am. ठीक है, डिफरेंशिएशन, हमने डिफरेंशिएशन लास्ट क्लास में भी किया था कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है उन्होंने अपना अपना काम पकड़ लिया कि दिस, मैं ये वाला काम करूंगा, मैं ये वाला काम करूंगा, दिस इज हाउ द सेल्स एज द सेल लीव्स द मेरिस्टेम दे अंडरगो डिफरेंशिएशन ऑन द स्पॉट। मतलब मान के चलो कि जैसे ही अनडिफरेंशिएटेड यहाँ पे पड़े थे, जैसे ही डिवीजन हुआ, मेरिस्टेम आगे बढ़ गया, और जैसे ही ये दो सेल थे, इन्होंने एकदम से अपने आप को डिफरेंशिएट कर दिया, उन्होंने कहा एक एक बनेगा फ्लोएम, एक बनेगा जाइलम, एक बनेगा रूट हेयर। So this is how rapid differentiation takes place once the meristem has divided itself, जिससे कि उनको फूड आए, पानी आए, या रूट से वो एब्जॉर्ब कर सके मिनरल्स। ये सतीश है, बोलो बच्चे।
Ma'am, last time also I had a doubt, like you told that when a specific gene functions after the division in the cell, and then the cell differentiates according to the like which part of the gene is functioning. So, Yes. ma'am, ma'am, why does the cell does not differentiate it before, and why does it first divides and then differentiate only? Like, how does it get to know that I have to differentiate it afterwards? Before I don't have to differentiate it before. हाँ देखो, डिफरेंशिएट का हमने ये भी किया था कि सेल हैज अ साइकिल, ठीक है, एवरी सेल हैज अ डिफरेंट, फॉर एग्जांपल मानो एक 100 दिन का एक सेल का साइकिल है, ठीक है, एंड नाउ द डीएनए हैज टोल्ड कि जैसे ही 50 डेज हो जाएंगे, ठीक है, 50 डेज पे द सेल विल डिफरेंशिएट इटसेल्फ, वो तब तक अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में बैठेगा, जैसे ही 50 डेज का साइकिल हो जाएगा देयर इज अ केमिकल विच विल बी रिलीज फ्रॉम द डीएनए विच विल मार्क द एक्टिवेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर जीन, और जैसे ही वो जीन एक्टिवेट हो जाएगा वो अपने आप को डिफरेंशिएट कर लेगा। तो इट इज ऑलवेज एम्बेडेड इन द सेल साइकिल, ये सेल की साइकिल के अंदर ही एम्बेडेड होता है। दिस इज नथिंग विच यू एक्सटर्नल स्टिमुलाई से आएगा कुछ भी, ये सेल के डीएनए में ही स्टोर होता है कि किस दिन पे किस टाइम पे वो किस प्रोसेस के ड्यूरिंग डिफरेंशिएट करना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज ऑल इंटरनली डिसाइडेड विद इन द सेल साइकिल, ठीक है। Okay, ma'am. चलो, आई होप दिस इज क्लियर, लेट्स टेक अप सम क्वेश्चंस, ठीक है, थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं मेरिस्टेम के। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिकल मेरिस्टेम, जल्दी से रेज योर हैंड। वंश, Ma'am, D. बी मींस Ma'am, A and D both are the answer. produce new leaves, so you want to say roots and leaves, No, ma'am, leaves and flowers. leaves and flowers, and roots and stem. Anyways, think about it. Atishay? Ma'am, I think all four are the answers. Exactly. All four are the answers, क्योंकि वो रूट्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो स्टेम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। न्यू स्टेम की बात हो रही है, पुरानी स्टेम की बात नहीं हो रही, ठीक है। देर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यू लीव्स एंड फ्लावर्स। लीव्स और फ्लावर्स को आप छोड़ सकते हो, ये थोड़ा सा हायर लेवल का है कि वो सेकेंडरी एपिकल मेरिस्टेम होते हैं, लेकिन अभी के लिए अगर आप बात करो तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यू रूट्स एंड न्यू स्टेम, बट लीव्स और फ्लावर्स गलत नहीं है, दे कैन ऑल्सो बी regarded in the apical meristem. Which type of meristem is responsible for the growth of a plant in width? जल्दी से आजम। Ma'am, lateral meristem. Yes, lateral meristem is responsible for growth of a plant in width, ठीक है। Where is the apical meristem located in the plant? Third question. Arav? Ma'am, both A and B Yes, at the tips of roots and shoots. fine, ठीक है। What is the function of intercalary meristem in a plant? जल्दी से करेंगे भव्य। भव्या? Ma'am, Srikar. What is the function of intercalary meristem? To increase the length of stem. Everyone agrees? Yes, ma'am. Perfect, ठीक है। Yes, तो ma'am. लेंथ ऑफ स्टेम के लिए देखो यहाँ न्यू वर्ड नहीं लिखा हुआ, ठीक है, न्यू वर्ड नहीं लिखा हुआ कि न्यू स्टेम आ रही है वो अलग चीज है, लेकिन लेंथ ऑफ स्टेम इज ऑलवेज डन बाय इंटरकैलरी मेरिस्टेम। Which type of meristem is responsible for production of secondary growth? ये हम कर चुके हैं पहले भी, it's a repetitive question. That's lateral meristem. Which type of meristem is responsible for production of xylem and phloem? It is Ma'am, secondary growth. Yes, secondary growth. बताओ. What is secondary growth? Any idea? Ma'am, can I? Yes, Laksh. Width. Ma'am, I think it should be intercalary. क्यों secondary growth intercalary क्यों करेगा? Ma'am, because it is present in the in between two nodes or at the tip of the two nodes. देखो, So, ma'am, xylem and phloem can be prevalent there. Can be there, देखो, ma'am. जब प्राइमरी ग्रोथ की बात होती है ना, वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट लेंथ। प्राइमरीली जब आप किसी भी ग्रोथ की बात करते हो, वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट लेंथ। तो एपिकल भी लेंथ को कर रहा होता है,
इंटरकैलरी भी लेंथ को ही कर रहा होता है। एक लौता है जो लेंथ को कंसिडर नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ विड्थ को कंसिडर करता है, ठीक है, साइडवेज को, ठीक है, विच इज नॉट वेरी ऑब्वियस। मोटा हो रहा होगा तो बहुत स्लो प्रोसेस है और वो सारे प्लांट्स में देखा भी नहीं जाता, ओनली वुडी प्लांट। तो जो साइडवेज ग्रोथ है दैट इज ऑलवेज carried out by lateral meristem, so that is a secondary growth। और जब जाइलम फ्लोएम की बात आती है तो जाइलम फ्लोएम आर आल्सो ग्रोइंग, उनकी भी जो ग्रोथ होती है वो सेकेंडरी ग्रोथ ही होती है, और उनके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, लेटरल मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। Ma'am, why the growth of xylem and phloem is secondary? अभी आगे जाके करेंगे, जब मैं फिगर दिखाऊंगी ना तो उससे आपको समझ में आएगा कि जाइलम और फ्लोएम सेकेंडरी किस तरह ग्रो होते हैं, ठीक है। अभी उसकी फिगर के लिए वेट करो। तो इस क्वेश्चन को अभी पास करते थे क्योंकि हमने जाइलम फ्लोएम अभी किया नहीं है, तो लेट इट बी, ठीक है, इस क्वेश्चन को अभी नहीं करते हैं कवर। विच टाइप ऑफ मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स इन प्लांट्स, ये हम कर चुके हैं, ठीक है। Which type of meristem is responsible for production of secondary roots in a plant? Secondary roots in a plant. Ma'am, lateral. नहीं, lateral is always responsible for secondary growth of the bark. Shoot. हमेशा bark के लिए responsible होगा वो secondary growth के लिए, लेकिन वो roots के लिए responsible नहीं होगा, ठीक है। Ma'am, apical meristem. यस, एपिकल मेरिस्टेम। जब आप रूट्स की भी बात करो, सेकेंडरी रूट के मतलब एक रूट निकल रही है, उससे दूसरी रूट निकल रही है, उससे तीसरी रूट निकल रही है, एक बार रूट सिस्टम डेवलप हो गया उसके बाद जो फर्दर रूट्स निकलती हैं उससे छोटी छोटी रूट्स, ठीक है, दैट इज Ma'am, एपिकल। वो secondary apical meristem हो गया। वो सिर्फ रूट्स के केस में सेकेंडरी है, ठीक है, सेकेंडरी इसलिए क्योंकि जो प्राइमरी है वो अपनी लेंथ पे पहुंच चुके हैं, लेकिन वो लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अब वो है कि साइडवेज भी जो नए नए बड से या टिप से जो निकल रहा है दैट इज सेकेंडरी। वैसे तो ये क्वेश्चन आई गेस ये 11th क्लास का क्वेश्चन है, ये आप लोगों की क्लास का क्वेश्चन है ही मैम, तो जैसे हमने स्टार्टिंग में शूट में किया था कि वो अपना थोड़ा सा पार्ट छोड़ जाता है जिससे लीव्स और फ्लावर्स ग्रो करते हैं, एग्जैक्टली उसी के एग्जैक्टली। तो एपिकल मेरिस्टेम यहाँ पे भी रिस्पॉन्सिबल होता है, वो अपना हल्का हल्का हिस्सा एक एक जगह पे छोड़ देता है विच लीड्स टू सेकेंडरी ग्रोथ। पर ये 11th क्लास का क्वेश्चन है, आप इसको इग्नोर कर सकते हो, ठीक है, डोंट टेक इट सीरियसली, इस वाले क्वेश्चन को आप इग्नोर भी कर सकते हो, ठीक है। ये वाला पार्ट हमारा हो गया। लक्ष्य, यू हैव अ डाउट? नो। ठीक है, यू कैन पुट डाउन योर हैंड, ठीक है, किसी को डाउट है तो यू कैन स्टिल कीप योर हैंड्स अप, बाकी सब डाउन कर लो हैंड, ठीक है। अब हम करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। सिंपल परमानेंट टिश्यूज का मतलब हमने पीछे किया था कि जब एक ही टाइप का सेल बहुत सारा हो जाए और वो एक सिंगल टिश्यू या एक सिंगल यूनिट की तरह काम करने लग जाए, दैट इज नोन एज सिंपल परमानेंट टिश्यूज। एंड देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है, कौन कौन से हैं? पेरेन्काइमा टिश्यू होता है, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। इनके नाम से मत घबराना, दे आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, सिर्फ नाम ही टफ है, ठीक है। और जब आप कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज की बात करो तो ये आप पहले से पढ़ते आ रहे हो, जाइलम एंड फ्लोएम, बिकॉज दे कंटेन मोर देन वन काइंड ऑफ सेल, ठीक है, वो एक मोर देन वन काइंड ऑफ सेल से बने होते हैं, इसीलिए दे आर ऑल्सो नोन एज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो सबसे पहले हम पेरेन्काइमा टिश्यू करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जब हम परमानेंट टिश्यू में सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ते हैं तो पेरेन्काइमा इज द वन विच इज लिविंग टिश्यू। पेरेन्काइमा टिश्यू को लिख भी सकते हो, is also known as ग्राउंड टिश्यू। कभी भी इसको रेफर करना हो कि पेरेन्काइमा टिश्यू क्या होता है, इसको नेक्स्ट अगर आप नेम देना चाहो तो इट इज ऑल्सो नोन एज ग्राउंड टिश्यू। क्यों? ग्राउंड टिश्यू का मतलब है एक ऐसी चीज जो कि प्लांट को ग्राउंड देता है, मतलब प्लांट मोस्टली 80% जो सेल्स आपके अंदर है, जो प्लांट के अंदर सेल्स हैं या जो टिश्यूज हैं, दे आर ऑल पेरेन्काइमा टिश्यूज। पेरेन्काइमा बहुत तरह के रोल्स प्ले करता है। पेरेन्काइमा एक तरह का रोल नहीं होता, मतलब मान के चलो बहुत सारे पेरेन्काइमा एक साथ मिल गए, दिखने में सारे एक जैसे होंगे, ठीक है, तो वो एक फ्रूट का पल्प बन गए। बहुत सारे एक जैसे दिखने वाले पेरेन्काइमा मतलब साथ मिल गए, तो दे आर वर्किंग एज मीजोफिल्स। मीजोफिल्स या आप उसको बोल लो कि जो जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसमें वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे पेरेन्काइमा टिश्यू इकट्ठे मिल गए तो उन्होंने कोई और सेकेंडरी फंक्शन उठा लिया, ठीक है। सो पेरेन्काइमा टिश्यू इज ऑल्सो नोन एज द ग्राउंड टिश्यू ऑफ अ प्लांट।
सेल वॉल इज ऑल्सो थिन वॉल्ड। इसकी थिन वॉल क्यों होती है? बिकॉज इट हैज द पर्पस ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड। तो जब फूड की स्टोरेज होगी तो मतलब फूड कॉन्स्टेंटली अंदर आ रहा है और फूड कॉन्स्टेंटली बाहर जा रहा है। दैट इज वाई द सेल वॉल इज वेरी थिन। अनदर थिंग इज कि हमने जब पढ़ा था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, हमने पढ़ा था कि कौन सा सेल डिवाइड, कौन से टिश्यूज डिवाइड कर सकते हैं। दे आर ओनली मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज विच कैन डिवाइड, फर्दर डिवाइड। एक बारी परमानेंट नाम जुड़ जाता है किसी पे तो परमानेंट का मतलब है दे लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, राइट। जब हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ा था इसका मतलब उनको ग्रोथ टिश्यूज कहते हैं, बाकी सारे मेंटेनेंस टिश्यूज होते हैं। यस लक्ष्य? यस मैम। सो मैम ये टिश्यूज पैरेन्काइमा टिश्यू कभी डेड नहीं होता? नहीं नहीं नहीं, दे आर ऑलवेज लिविंग। ओके। ठीक है। अच्छा अब सुनो, हमने ये देखा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो तो डिवाइड करता रहता है, लेकिन परमानेंट वर्ड जब किसी के साथ जुड़ गया इसका मतलब अब वो परमानेंट हो चुका है, वो डिवाइड नहीं करेगा। जो वो सेल बन गया वो वैसा का वैसे ही रहेगा। ठीक है। और नए सेल्स उसके साथ जुड़ेंगे, वो मेरिस्टेमेटिक से ही जुड़ेंगे, उससे नहीं जुड़ेंगे। लेकिन पेरेन्काइमा इज एन एक्सेप्शन। ठीक है, ये एक्सेप्शनल सेल है। मान के चलो एक प्लांट है, ठीक है, उसको कोई, मान के चलो कोई इंजरी हो जाती है इस पार्ट पे, ठीक है, और यहाँ पे सारे पेरेन्काइमा टिश्यूज थे। ठीक है। पेरेन्काइमा टिश्यूज मतलब बहुत सारे सेल्स थे जो परमानेंट स्टेट में पड़े हुए थे, वो डिवीजन नहीं कर रहे थे। लेकिन जब सेल को कोई इंजरी हुई या प्लांट को कोई इंजरी हुई तो मान के चलो ये दो सेल्स हैं, इनका डीएनए एक्टिवेट हो गया, और जैसे ही इनका डीएनए एक्टिवेट हुआ दे डी डिफ्रेंशिएटेड। ध्यान से देखना, हमने अभी वर्ड पढ़ा था डिफरेंशिएटेड। डी डिफरेंशिएटेड का मतलब है वो वापस उसी स्टेट में आ गए जिसमें वो पहले थे, मतलब अब वो थोड़ी देर के लिए मेरिस्टेम की तरह एक्ट करेंगे। दे हैव द एबिलिटी टू डी डिफरेंशिएट देमसेल्व्स एंड एक्ट एज मेरिस्टेम। तो ये दो सेल क्या करेंगे, अपने दो सेल अपनी दो दो कॉपी बनाएंगे, फिर ये अपनी दो दो कॉपी बनाएंगे, इस तरह कॉपी बना के ये इस वाले इंजरी वाले एरिया को कंप्लीटली फिल कर देंगे। ठीक है। they will fill that area and then again they will convert themselves into parenchyma tissue। ठीक है। तो सिर्फ parenchyma के पास एक एबिलिटी होती है to convert itself again into meristematic tissue, बाकी और किसी टिश्यू में ये एबिलिटी नहीं होती है। ठीक है। तो पेरेन्काइमा की इसलिए भी थिन वॉल होते हैं क्योंकि वो कभी ना कभी मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो सकते हैं, प्लस स्टोरेज ऑफ फूड भी उनके लिए। यस माँ, वो डी डिफरेंशिएटेड होने के बाद वापस डिफरेंशिएटेड हो जाता है। एग्जैक्टली, वो डी डिफरेंशिएट होने के बाद वापस से डिफरेंशिएट हो जाते हैं, जो वो जिस तरह से थे वो वापस वैसे ही डिफरेंशिएट होकर उन्हीं पोजीशन में आ जाते हैं। ठीक है। आई गेस वी आर रनिंग आउट ऑफ माँ टाइम। तो पेरेन्काइमा टिश्यूज का डोंट वरी, आई टेक इट अप इन अनदर क्लास। ठीक है, मेरी एक और क्लास है।